A very healthy morning, all of you. Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. How are you all? I hope you all are taking good care of yourself. So, students, on 23rd is your social science UT third. So, beta, two chapters will come in your UT. The first chapter is chapter number 6 and the chapter number 9. So beta, the chapter number 6 we have already done the revision. Now we are just continue the chapter number 9 revision. The name of this chapter is natural disaster. So beta, just just look a quick recap of this. In a previous video, we have already discussed about the disaster. So the natural activity or an accident that causes a great loss of life of people and property, it's known as disaster. Beta, these type disaster basically divided into two groups. The first are natural disaster activities and the second one is man-made disaster activities. So the natural disaster activities is the disaster which are caused by natural activities like flood, drought, earthquake, cyclone, tsunami, landslide. These are the natural disaster. And the disasters which are caused due to human negligence or a machine failure are called man-made disasters like fire accident, rail accident, road accident, etc. So beta, in this chapter we are just going to read this only. So in the previous class we have already read about the flood. Flood is the most common natural disaster in the world. Okay, basically it's occur in a rainy season when rivers start overflowing. Okay, and sometimes the crack occur in embankments of river or dams are called flood. बच्चे, deforestation is also the one main reason for the flood. Beta, what is that meaning of deforestation? Cutting down the trees are deforestation. The flood occur in a states basically is a Bihar, Assam, West Bengal prone the flood area. इफेक्ट मैंने बताए थे आपको, बेसिक क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं. इफेक्ट ऑफ फ्लड, मैनी हाउसेज स्पेशली द कच्चा हाउसेज आर डिस्ट्रॉयड, मैनी पीपल एंड एनिमल्स आर इंजर्ड एंड लॉस देयर लाइफ, क्रॉप्स आर ऑलरेडी वॉश्ड अवे, acute shortage of drinking water because of most of the water being contaminated, many diseases spread after the flood because of unhygienic conditions. Precautions, बेटा क्या क्या precautions ले सकते हैं? Listen to flood warning radio and television. Store clean drinking water for the food emergency. Move to elevated places. Do not enter in the flood after when because of many harmful animals. Drink only boiled water. The second जो हमने पढ़ा था in the last class, that is a drought. Drought is a situation when there is a acute shortage of water on a many months. बेटा ज़्यादा पानी आए तो it comes a flood, और अगर काफ़ी टाइम पानी ना आए, कई महीनों तक कई मंथ्स तक रेनफॉल ना हो, so the situation that is called is flood. So in this there is a no or very little rainfall. Rajasthan, Gujarat, Odisha, Maharashtra and Bihar are the some drought prone states of India. Beta, have you seen that? हमने अभी पढ़ा कि बिहार is also a flood prone area. So बिहार का कुछ part comes under the flood prone area and some part is comes under the drought prone area. Got it? So as you know that this is the effect of drought, shortage of water, as you know this. ठीक है, soil gets dried, farmers lose their livelihoods, there is a great shortage of food because as you know that if there is no water, so how can we grow crops are growing. So many people starve and due to droughts, starve means भूखे रहना. Many animals also die. Plants and trees also adversely affected. So precautions हम क्या ले सकते हैं? Practice of rain water
हार्वेस्टिंग, मैंने बताया भी था आपको उस दिन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बेटर मेथड ऑफ इरीगेशन लाइक डिप इरीगेशन. More and more plants should be grown in a drought prone area. So in today class we are just going to revise earthquake. As you listen about this word earthquake, so the shaking of the earth, it's a earthquake. That is referred as a earthquake. It is occurred due to movement of huge rock plates inside the earth crust. ये भी मैंने आपको बताया था. Earthquake is measured on seismometer. बेटा जैसे कि when you are feeling hot, आपको गर्मी लगती है, थोड़ी घबराहट होती है, फीवर जैसी फीलिंग होती है, सो किस डिवाइस से आप अपना फीवर मेजर करते हो? टेल मी. थर्मोमीटर. थर्मोमीटर क्या बताता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताता है. सेम एज दैट सिस्मोमीटर मेजर्ड द अर्थक्वेक. जिस मशीन से अर्थक्वेक को नापा जाता है दैट इज अ सिस्मोमीटर. व्हाट इज दैट? सिस्मोमीटर. एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज रेटेड ऑन रिक्टर स्केल. जैसे आपका फीवर कैसे नापा जाता है? डिग्री फ़ारेनहाइट में या फिर डिग्री सेल्सियस में आप टेम्परेचर नापते हैं. सेम एज दैट अर्थक्वेक को किस में मेजर, इंटेंसिटी किस में मेजर होती है? रिक्टर स्केल. Repeat after me. Richter scale. So the place inside the earth crust where is earthquake originate is called focus. यानी कि जिस प्लेस से earthquake originate हो रहा है that is called a focus. क्या कहते हैं उसे? Focus. The place directly over the focus on the earth surface is called epicenter. और जहाँ से वो originate हो रहा है exact उसके ऊपर वाले surface को हम क्या कहते हैं? Epicenter. बेटा 1000 of earthquake is every year has to be come. बहुत सारे earthquakes हर साल आते रहते हैं. some earthquakes को हम फील कर पाते हैं, some earthquake को हम फील नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी इंटेंसिटी काफ़ी लो होती है. the earthquake of intensity less than 3 on a Richter scale it's a mild earthquake. जिसकी इंटेंसिटी कितनी होती है? 3 रिक्टर स्केल से कम होती है. दैट इज कॉल्ड अ माइल्ड अर्थक्वेक. माइल्ड मीन्स बहुत हल्के होते हैं जिसे हम मेजर नहीं कर पाते, नहीं देख पाते. एंड अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 7 इट्स क्वाइट डिजास्टरटिव. दे आर डिस्ट्रक्टिव. बेसिकली जिनकी क्वांटिटी इंटेंसिटी 7 हो जाती है वो एरियाज नियर द एपीसेंटर आर अर्थक्वेक एडवाइजली अफेक्टेड. यानी कि जहाँ कहीं भी 7 या 7 से अबव अर्थक्वेक आता है इंटेंसिटी में वहाँ पर ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है. इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं? बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, जैसा मैंने आपको बताया था डैमेज हो जाती है. इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन लाइन्स आर डैमेज. Sometime fire break out for damaged building. Many people and animal trapped inside the building. Sometime earthquake also occur in ocean which ultimately trigger a tsunami. यानी कि जब ये earthquake oceans में आते हैं तो वो किसको ट्रिगर करते हैं? सुनामी को. किसको बुलाते हैं? सुनामी को. प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको earthquake फील हो, डोंट बी पैनिक. आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है. एंड ट्राई टू मूव एन ओपन एरिया इमीडिएटली. क्या ट्राई करना है? कि आपने ओपन एरिया में जितना जल्दी हो सके पहुंचना है. रिमेन क्लोज टू वॉल्स एंड सिट अंडर अ टेबल और बेड. अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो किसी भी टेबल या बेड के नीचे आप छुप सकते हैं. किसी भी वॉल के साथ टच होके खड़े हो सकते हैं. कीप अवे फ्रॉम ट्रीज, पोल, साइन बोर्ड और इलेक्ट्रिक वायर. किन किन चीज़ों से दूर रहना है? इलेक्ट्रिक बोर्ड, ट्रीज, पोल, मिरर. डू नॉट यूज़ अ लिफ्ट, इंस्टेड यूज़ स्टेयरकेस. कभी भी ऐसा आपको लगे कि अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है, स्टेयर्स यूज़ करनी है. स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई. डू नॉट सिट इनसाइड अ कार और बस. कार और बस के अंदर नहीं बैठना है. कीप अवे फ्रॉम विंडोज़ एंड मिरर. यानी कि विंडोज़ एंड मिरर से दूर रहना है. द अनदर नेचुरल डिजास्टर इज साइक्लोन. साइक्लोन मीन्स चक्रवात.
जिसे हमने लिखा भी हुआ है घूमती हुई वायु राशि का नाम। साइक्लोन इज अ स्ट्रॉन्ग सर्कुलेटरी विंड दैट कॉजेज हैवी रेन। साइक्लोन क्या है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग घूमता हुआ बवंडर जैसा होता है बेटा, दैट कॉजेज हैवी रेन। इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा बेटा, इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, कॉजेज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बेटा ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ का एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है। ड्यूरिंग अ साइक्लोन विंड ब्लो एट अ हाई स्पीड एंड हैवी रेन्स अकर। यानी कि अभी क्या हो रहा है, अभी व्हेन द साइक्लोन इज, जब साइक्लोन आ रहा होता है उस समय पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड होती है हाई स्पीड में और हैवी रेनफॉल होता है। मोस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न सी कोस्ट लाइक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आर द मोस्ट साइक्लोन प्रोन स्टेट्स। बेटा ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं। इफेक्ट ऑफ साइक्लोन, सो डिड यू रियली थिंक कितने इफेक्ट होते होंगे? द साइक्लोन डिस्ट्रॉय मीन्स सब नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट्स कम अंडर इट्स वे। यानी कि साइक्लोन के रास्ते में जो आता है साइक्लोन उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। इट अपरूटेड ट्री एंड पोल्स, और सम टाइम तो ट्रीज एंड पोल्स को उसकी जगह से ही उखाड़ देती है। इट कैन ब्लो अवे बिल्डिंग फ्रॉम देयर फाउंडेशन, यानी कि बिल्डिंग्स तक भी पूरी की पूरी टूट जाती हैं। इट डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन लाइन्स। मैनी लो लेइंग एरिया सबमर्ज इन वाटर ड्यू टू हैवी रेनफॉल। यानी कि बेटा बहुत सारे एरियाज जो कि काफ़ी निचली सतह पे बने हुए हैं वो तो पानी में प्रॉपरली डूब ही जाते हैं क्योंकि साथ साथ हैवी रेनफॉल भी हो रही है। अब प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं अगर ऐसा कभी आए तो? सबसे पहले बेटा एज यू नो दैट वेदर रिपोर्ट आपको मिल जाती है, आप न्यूज़ पे रेडियो पे सुनते हैं कि आने वाले 10 डेज़ में कैसा वेदर रहने वाला है। रेडियो टीवी को फॉलो करें, उनकी एडवाइस को फॉलो करें। डू नॉट गो नियर द सी, जब आपको लगे कि ऐसी सिचुएशन है तो सी के पास कभी ना जाए। मूव टू सेफर प्लेस। स्टोर फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसी। डू नॉट गो आउट टिल यू गेट ऑफिशियल एडवाइस, जब तक बाहर नहीं जाना जब तक कि आपको ऑफिशियल एडवाइस ना मिल जाए कि सब बाहर ठीक है। द लास्ट वन इज सुनामी, आपने सुना ही होगा इसका नाम। सुनामी इज अ ह्यूज वेव इन अ सी कॉज्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक। अभी हमने पढ़ा कि सी के अंदर जब अर्थक्वेक आता है सो दैट्स ट्रिगर द सुनामी। तो सुनामी कम्स व्हेन द सी स्ट्रॉन्ग वेव्स स्ट्राइक द कोस्टल एरियाज एंड समटाइम एंटर मैनी किलोमीटर्स इनटू द लैंड। अ सुनामी इज कॉज्ड either by the undersea earthquake or volcanic eruption। जब वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, यानी कि जब वॉल्केनो निकलने के लिए होता है या फिर सी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। द वेव्स ट्रैवल अ स्पीड ऑफ 750 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, कितनी? 750 किलोमीटर्स पर आवर। व्हेन द वेव्स स्ट्राइक द कोस्ट दे लुक लाइक अ वॉल ऑफ वाटर। कभी कभार तो ऐसा इतनी तेज़ और इतनी स्पीड में ऊंचाई से वेव्स आती हैं कि ऐसा लगता है कि ये वाटर की वॉल है। कोस्टल एरियाज आर मोस्ट प्रोन टू दिस devastating natural disaster. Effect of tsunami. It damage home, trees, pole, etc. in the coastal areas. बेटा ऑब्वियसली जब सुनामी इतनी स्पीड से आएगी तो क्या ये सारी चीज़ें क्या होंगी? डैमेज होंगी फॉर श्योर। मैनी पीपल एंड एनिमल डाई ड्यू टू ड्रॉइंग, यानी कि बह जाने की वजह से, डूब जाने की वजह से बहुत सारे पीपल एंड एनिमल्स भी मर जाते हैं। अ लार्ज एरिया अलॉन्ग द सी कोस्ट गेट सबमर्ज इन वाटर, यानी कि पानी, बहुत सारा लैंड एरिया पानी में डूब जाता है। क्रॉप स्टैंडिंग इन द फील्ड आर डिस्ट्रॉय, एज यू नो दिस। प्रिकॉशंस, अब हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जब सुनामी आए? देयर इज अ अंडर सी अर्थक्वेक, लिसन टू वार्निंग टू रिलेटेड टू सुनामी।
ठीक है। इफ़ देयर इज सुनामी अलर्ट मूव टू सेफर प्लेस। जब कभी भी आपको सुनामी अलर्ट का पता चले कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके आप सेफर प्लेस पे चले जाएं। इफ़ यू डू नॉट मूव अवे क्लोज टू डोर एंड विंडो एट द हाउस प्रॉपरली। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो कोशिश कीजिए घर की दीवारों या फिर डोर्स के साथ, विंडो या डोर्स के साथ प्रॉपरली उनके साथ सट के खड़े रहें। स्टोर फूड एंड अ ड्रिंक वाटर फॉर एमरजेंसी, यानी कि घर में आपके खाना और पानी की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। बेटा दीज आर द क्विक रिवीजन। फायर एक्सीडेंट इज़ अ नेचुरल डिजास्टर, दिस इज फॉल्स। बिहार इज फ्लड प्रोन एरिया, दिस इज ट्रू। ड्रॉट इज कॉज टू ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बेटा this worksheet I know that you have already done and I hope you understand this chapter very clearly. If you have any problem you can ask with me. Okay beta, thank you so much for watching this video. I hope you understand, again I'm saying I hope you understand these videos and it is very important to understand this video. You have to watch full video. बेटा पूरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है. Just focus on your studies. Thank you so much students for